Hello dear students, welcome back to my channel Aryabhatta Ganita Club. In the previous videos we have done the model, concept attainment model and lesson plan based on that model. In this video I am going to present the Hilda Taba inductive thinking model. Before going to sample of this model based lesson plan in mathematics, मैं जल्दी से आपको ये मॉडल पहले रिवाइज करवा देती हूँ. Although you have done this in your first semester, the Hilda Taba model, as you know, that it was given by Hilda Taba, and his approach was basically around three assumptions. She assumed that thinking can be taught, that you can teach the students by engaging them in practice, just like in particular inductive reasoning. And if we talk about mathematics, तो mathematics में हम जो basic concepts हैं, especially in lower classes, तो mathematics में inductive thinking model काफ़ी help करता है उन concepts को teach करवाने के लिए. Now thinking is second, she said that thinking is an active transaction between the individual and data. This relies on earlier theories which was given by concept attainment model given by Bruner, and which you all know that it is important component of concept learning, as you have already done in the previous video. Taba identified three thinking skills basically. The first stage includes concept formation, the second includes interpretation of data, and third is application of principles. And the first stage, concept formation, again in concept attainment model we have done the lesson plan in mathematics also using these steps. The major steps of this stage are, first is listing the items. For example, जो भी concept आपने choose किया है उसके कुछ mixed examples जो हमने lesson plan में दी, जैसे यहाँ पे table show हो रहा है कि जो teacher है वो items, combined items देगा students को. Then students are asked to group the similar items, and then in the process they are to label these ki how they have done based on different categories, how they have formed the group, etc. And then with the help of teacher they try to form the frame the concept. So basically मैं इसे fast निकाल रही हूँ. Phase 1 में identify and list, जो लिस्ट आपने दी उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया. देन स्टूडेंट्स ने ग्रुपिंग करने की कोशिश की कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, जो लास्ट वीडियो में हमने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की एग्जांपल लेके भी किया था बिफोर लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स. देन थर्ड वाज कैटेगराइजिंग, कि लेबलिंग कर लिया था कि ये ग्रुप्स जो है ये कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ कच्चे खाए जाने वाले हैं और कुछ दोनों, एंड सो ऑन. Then second is interpretation of data. This includes basically identifying the critical relationships. कि जो भी डाटा स्टूडेंट को दिया गया है, स्टूडेंट उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया, उन्होंने क्या रिलेशनशिप थी जिसके बेसिस पे ग्रुपिंग की और उनको कैटेगराइज किया. देन स्टूडेंट ट्राई टू फॉर्म द रिलेशनशिप्स, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप जो भी उनके पास डाटा है. ये हम आगे जब मैथ्स की लेसन प्लानिंग करेंगे एग्जाम्पल के साथ और क्लियर करवाऊंगी मैं आपको. देन फेज 6 जो इसकी है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा की, दैट इज मेकिंग इन्फ्रेंसेस, द जनरलाइजेशन. एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक or depending upon the concept, speed of students, their creative and critical thinking, these steps obviously and phases can be repeated or revised till that student attain the stage. और next इसमें मॉडल में आती है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसमें जब हम जितने भी फर्दर स्टेप्स हमने किए हैं, सपोर्ट सिस्टम आगे जो भी आएगा वो सब कुछ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स में ही इंक्लूडेड है. जिसमें फेज 7 जो आप देख रहे हो, प्रिडिक्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, कि व्हाट इफ, कि फॉर एग्जांपल कि जैसे मैथ्स का लेसन प्लान जो मैं आगे एग्जांपल लूंगी कि जो भी नंबर्स हैं उनको किस बेस पे कैटेगराइज किया, अगर ये साथ में कंडीशन हो तो क्या होगा. देन एक्सप्लेन और सपोर्ट द प्रिडिक्शंस, एंड देन वेरीफाइंग द दोज प्रिडिक्शंस, राइट. तो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टाबा मॉडल, कि जो आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग्स है, स्किल्स है, उसको डेवलप करता है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को स्टूडेंट्स के डेवलप करता है,
और लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्सप्लोर द क्वेश्चंस विद मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और स्टूडेंट्स क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, अपनी कंडीशंस खुद सेट करते हैं कि किस बेस पे उन्होंने कैटेगराइज किया है. And questions can be open-ended. Here, no clear right or wrong answer is there. Students work collaboratively with others. As दो स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल्स देते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने दी है, तो कुछ स्टूडेंट्स को आप जैसे मान लो 4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सेम आंसर दिया कि एक ग्रुप फ्रॉम किया फ्रॉम द गिवन डाटा एंड एक्सेट्रा. सो उनका जो रिस्पॉन्स है, उनका जो वर्क है वो कलेक्टिव है. देन दिस मॉडल प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिच क्लासरूम डिस्कशन, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही इन्वॉल्व हैं. कुछ भी स्टूडेंट्स पे इम्पोज नहीं किया गया, रेदर इंड्यूस किया जा रहा है. उसकी जो थिंकिंग, इंडक्टिव थिंकिंग है, उसको डेवलप किया जा रहा है. देन लिमिटेशंस, ऑफ कोर्स यू नो दैट व्हेन एज अ pupil टीचर यू आर प्लानिंग, तो समटाइम्स बिकम डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू हैंडल द ओपन एंडेड एस्पेक्ट ऑफ मॉडल जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो. then maybe it is difficult to adapt for all subjects and all topics, कि सारे कॉन्सेप्ट्स आप ज़रूरी नहीं कि इस मॉडल से पढ़ाओ, और उसके लिए प्लानिंग जो करनी है वो भी आपको काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो बेटर चूज द कॉन्सेप्ट केयरफुली एंड मूव अहेड, कि जो कॉन्सेप्ट आप चूज करना चाहते हो वो कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर जितनी लिस्टिंग है, जितनी आप इमेजिन करके चल रहे हो कि स्टूडेंट्स क्या रिस्पांस करेंगे, किस तरह से वो ग्रुपिंग और कैटेगराइज की कोशिश करेंगे, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये चूज करना है कि क्या मैं टाबा इंडक्टिव थिंकिंग जो मॉडल है उसको मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में यूज कर सकती हूँ. नेक्स्ट, सैम्पल ऑफ लेसन प्लान बेस्ड ऑन टाबा इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल. बेसिकली मैं मैथ्स का ही मॉडल ले रही हूँ, और जो टॉपिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिया है वो है को प्राइम एंड ट्विन प्राइम नंबर्स. तो आगे मैं जितने भी स्टेप्स आपको दिखाऊंगी, अगेन वो सारे स्टेप्स उसी तरह से हैं जिस तरह से आपने इस मॉडल के ऊपर बेस्ड लेसन प्लान बनाना है इन मैथमेटिक्स. सो नेक्स्ट ऑल द स्लाइड्स विल बी बेस्ड ऑन दिस. सो concept is co-prime and twin prime numbers, and the next slides contain the lesson plan, format of lesson plan based on this model, Taba inductive thinking model. So first step is we are having curriculum objectives. Curriculum objective to collect, organize and manipulate the data, to develop a series of teaching strategies designed to develop the mental process. These are general curriculum objectives. To develop the ability to categorize, to improve students' ability to handle the information, to improve students' ability to handle the information, then to induce students expand the conceptual system with which they process the information. You can use the language of your own what you want. Then second is specific objective or objectives. At the end of this lesson, pupils will be able to prepare a list of 10 prime numbers after they have got the concept. Then they can prepare a list of different co-prime numbers. They can classify the prime, co-prime and twin prime numbers, and they can generate and label more examples, similar examples. Then specific medium of the concept. PT will have a list containing different types of co-prime numbers, prime numbers and twin prime numbers. Then general medium of the concept. Again, you have done like in your lesson plan, well ventilated spacious classroom with sitting arrangement, chalk, duster, colored chalk, etc. Then prior knowledge detail. It is assumed that the students have some knowledge about prime numbers, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. लाइक कोई भी टॉपिक अगर आप करवा रहे हो, लेसन प्लान अगर आप मैक्रो लेसन बना रहे हो, डिटेल्ड लेसन बना रहे हो, तो उसमें आप ये मान के चलते हो कि स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नॉलेज है, जो स्टार्टिंग पॉइंट लेके आप फिर स्टूडेंट्स को आगे लेके चलते हो टू डेवलप द कॉन्सेप्ट. एंड फोकस enables the students to go about the co-prime and twin prime numbers and develop their mental ability with concept formation. That students will be able to know about what are prime numbers, co-prime and twin prime numbers, and develop their mental ability with
कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। नाउ सिंटेक्स, इसके बाद मैं टेबल आपको शेयर करूंगी कि किस फॉर्मेट में आपने सिंटेक्स जो है वो लिखना है। पीटी विल राइट सम एग्जांपल्स ऑन द चार्टबोर्ड एंड स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ देम ऑन देयर नोटबुक्स। यस, इस तरह से आपने जैसे 4 कॉलम्स बनाए हैं, तो सिंटेक्स, देन पीटी एक्टिविटी, देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड चार्टबोर्ड समरी। तो अगेन जो अभी स्टेप्स हमने स्ट्रेटजीज की, उसकी फेजेस की हैं, उसी तरह से यहाँ पे फेजेस मेंशन की हुई हैं। आप चाहो तो सेपरेट कॉलम्स में फेज 1 को एक बॉक्स बना के यहाँ इलेबोरेट कर सकते हो, देन फेज 2 एंड देन 3। तो मैंने इसको एक में कंबाइन किया हुआ है, आप सेपरेट कॉलम्स बना के उनको लिख सकते हो, अदरवाइज जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती है। देन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, फर्स्ट स्ट्रेटजी, द फेज 1, पीटी विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। प्यूपिल टीचर जो है स्टूडेंट्स को लिस्ट ऑफ नंबर्स देगा जो इंक्लूड करेगी को प्राइम, ट्विन प्राइम, इवन ऑड नंबर्स, एंड स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू राइट दिस ऑन देयर नोटबुक्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स को ये कहा जाएगा कि आप इनकी ग्रुपिंग करने की कोशिश करो, जो लास्ट स्लाइड में हमने किया था, लिस्टिंग, ग्रुपिंग एंड लेबलिंग। एंड कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में भी यही स्टेप फॉलो किया आपने। सो पीपल विल प्रिपेयर द लिस्ट ऑन देयर नोटबुक्स, ये जो लिस्ट टीचर ने प्रोवाइड की है ऑन द चार्टबोर्ड। फिर वो ग्रुप्स बनाने की कोशिश करेंगे कुछ कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे, जैसे आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो 10, 17, 10, 9 एक्सेट्रा। इनमें से मिक्स नंबर्स की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड की गई है। और देन थर्ड फेज में स्टूडेंट्स विल ट्राई टू लेबल दीज नंबर्स ऑन, उनकी कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में। देन स्ट्रेटजी 2, फेज 4, पीटी विल आस्क द स्टूडेंट्स टू मेंशन द बेसिस ऑन विच दे हैव कैटेगराइज, कि स्टूडेंट्स ने जो भी ग्रुप्स बनाए हैं, कईयों ने ग्रुप बनाए होंगे इवन नंबर का सेट है, देन ये नंबर्स है जिनके कॉमन फैक्टर्स हैं, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं एक्सेट्रा। तो फेज 4 में स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिफाई करवाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि किस बेसिस पे उन्होंने कैटेगराइज किया नंबर को। तो दे विल ट्राई टू टेल द ग्रुप्स दे कैन एंड दे हैव मेड। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने सपोज ये ग्रुप बनाया नंबर्स हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर, लाइक 10, 17, 10, 9, 10, 13, 6, 7, 19, 20। अब इन नंबर्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इनमें सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर। 10, 17 इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सपेक्ट 1, 10, 9 का ओनली 1, 10, 13, 6, 7, 19, 20। देन कुछ स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किए वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जैसे ये है। देन कुछ ने ग्रुप बनाया जिनके बीच में डिफरेंस जो नंबर्स का है वो 2 का डिफरेंस है, जैसे 17, 19, 41, 43, बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन और जो उन्होंने कुछ पहले किया हुआ था, इवन ऑड नंबर्स या जो भी उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया आफ्टर देयर थिंकिंग स्ट्रेटजीज फॉलो की। ये 3 ग्रुप्स यहाँ पे हमें मिल गए, हैविंग 1 as a common factor, then having more than 2 factors, then difference of 2. Then phase 5, explaining the relationship. PT will ask the students questions related to groups formed. Then they will try to give the answers. जैसे कुछ भी क्वेश्चन आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो। What similarities do you find in all the groups? Then what are the points of distinction between them? ये different groups यहाँ पे elaborate किए हुए हैं। Groups include having more than 2 factors, then numbers having 1 factors, having both prime numbers etc. या उसके बेसिस पे अगेन आप जैसे हमने बात की कि पिछली फेजेस को रिवाइज करवा के मोर ग्रुप्स अगर स्टूडेंट्स फ्रेम करते हैं तो वो ग्रुप्स फ्रेम किए। देन फेज 6, मेकिंग इन्फ्रेंसेस, then students will go beyond the concept and they will try to generalize to arrive at some conclusion based on inference. Then they will generalize that numbers having 1 as a common factor, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट अटेन किया या जो भी उन्होंने अपनी थिंकिंग और ग्रुपिंग के बेसिस पे जनरलाइज किया, रिजल्ट इन्फ्रेंस किया, नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम। देन स्ट्रेटजी 3, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। जितनी भी नेक्स्ट स्लाइड्स हैं दे ऑल इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। PT will tell the students the actual name
एंड द कॉन्सेप्ट जो अब अटेन किया, जो पीटी ने ट्राई किया स्टूडेंट्स को जहां तक लेके आने के लिए। को प्राइम नंबर्स, टू नंबर्स आर को प्राइम इफ दे हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। सो टू नंबर्स हैविंग वन एज अ कॉमन फैक्टर। देन ट्विन प्राइम नंबर्स, two numbers having difference of 2 between them are termed as twin prime numbers, कि जैसे ऊपर मेंशन किए हुए 17, 19 का जो पेयर है वो ट्विन प्राइम है, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट है सोशल सिस्टम। हेयर पीटी विल ट्राई टू मेंटेन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट इन द क्लास, कि वो इनिशिएट करेगा जो भी लिस्ट एक बार प्रोवाइड करवा दी, ग्रुपिंग जिसके बेसिस पे बननी है, कैटेगराइज होनी है सारी इंफॉर्मेशन। देन ही और शी इज अ कंट्रोलर ऑफ एवरी एक्टिविटी जो भी क्लास में चल रही है, जो स्टूडेंट्स फ्रेम कर रहे हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, पीटी विल नॉट आस्क द क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग द लिस्ट और दे आर लेबलिंग द एग्जाम्पल्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो एक्टिविटी है वो कॉग्निटिव थिंकिंग के थ्रू, अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके बेसिस के ऊपर जब स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं तो पीटी विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। देन सपोर्ट सिस्टम, पीटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स इन करेक्टिंग इन लेबलिंग द रिस्पॉन्सेज, कि मान लो उन्होंने जो 4 ग्रुप्स बनाए हैं उनमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके साथ वो पेयर ऑफ नंबर्स नहीं टैली कर रहा था। देन पीटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स इन करेक्टिंग एंड लेबलिंग द रिस्पॉन्सेज, और उसको एक राइट नेम के आगे लेके जाएगा, और फिर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो जो फाइनल ग्रुप है एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस करें। देन अगेन क्वेश्चंस, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स, एनसर्कल द और आइडेंटिफाई द को प्राइम नंबर्स, give some more examples of twin prime numbers and list the co-prime and twin prime numbers from 50 to 100। जो भी क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट अपने बेस के ऊपर बनाना चाहते हो। Then instructional effect, PT will conclude that this type of teaching helps in concept formation and it leads to logical and cognitive thinking। तो होप ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हैं। मैं एक बार आपको लेसन प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं, फॉर्मेट है, वो दोबारा से दिखा देती हूँ एक बार। Curriculum objective, first specific objective, second then medium, specific and general, prior knowledge needed, focus, and then the main step जो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे लेसन प्लानिंग के टाइम पे, this model based lesson plan, syntax, PT activity, pupil teachers activity, then pupil activity and chalkboard summary, strategy 2 interpretation, जिसमें इसकी तीनों phases आएंगी, phase 4, phase 5, phase 6, then third application of principles, social system, principle of reaction, support system, application, instructional effect। I hope ये steps आपको clear हैं। Try to take some concept और खुद बनाने की कोशिश करो lesson plan। अगर आपको ये format या इसकी document चाहिए तो you are welcome, आप comment box में type करो, I will send you the format। Thank you।